پاکستان نے انگلینڈ کو راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر 3 سال 8 ماہ بعد سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستانی اسپنرز کا جادو سر چڑھ کر بولا، گورے بیٹر کی ایک نہ چلنے دی۔ انگلینڈ نے تیسرے دن اپنی دوسری اننگ میں 3 کھلاڑی آؤٹ 24 رن سے شروع کی تو ساجد خان اور نعمان علی نے انگلش بلے بازوں کو اپنی گھومتی گیندوں کے جال میں پھنسا لیا۔ پوری انگلش ٹیم 106 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کو 36 رنز کا آسان ترین ہدف ملا جسے شاہینوں نے بآسانی سائم ایوب کے وکٹ گنوانے کے ساتھ حاصل کر لیا۔ میچ میں شاندار سینچری بنانے پر پاکستانی بیٹر سعود شکیل کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ساجد خان سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان نے 2005 کے بعد انگلینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دی۔ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی 8 سال بعد ٹیسٹ سیریز میں فتح ہے۔ پاکستان نے آخری ہوم ٹیسٹ سیریز جنوری 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف جیتی تھی۔ سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ میری کپتانی میں 6 میچز ہارے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کپتانی کی کرسی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی پریس کانفرنس کہتے ہیں، ہم سب پاکستان کو فتح یاب ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ جہاں بھی کھیلنا ہے کنڈیشن سے ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، چاہے گرین وکٹ پر کھیلیں یا اسپن وکٹ پر نتیجہ نکالنا ہمارا کام ہے۔ ٹاس ہارنے کے بعد بھی میچ جیتنے پر بہت مطمئن ہوں۔ قومی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نعمان علی اور ساجد خان نے سیریز کے آخری 2 میچوں میں 39 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مین آف دی میچ سعود شکیل کی میچ کے بعد گفتگو، کہا نعمان علی اور ساجد خان نے بہترین کھیل پیش کیا۔ مین آف دی سیریز ساجد خان نے کہا کہ کامران غلام ٹیم میں بہترین دوست ہیں، گراؤنڈ سے باہر مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پلیئر آف دی سیریز ایوارڈ نعمان علی کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں فتح پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیم کے ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کھلاڑیوں کی ملاقات، محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی، بولے کہ آپ متحد ہو کر کھیلے تو کامیابی نے قدم چومے۔ شروع سے ٹیم ورک کی ضرورت پر زور دیا، نتائج سامنے ہیں۔ کھلاڑیوں کی دستخط شدہ شرط چیئرمین پی سی بی کو پیش کی گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر کو دوبارہ ججز کمیٹی میں شامل کر لیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کمیٹی سے آؤٹ ہو گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس بن گئے۔ ایوانی صدر میں صدر مملکت آصف زرداری نے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف، وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے چارج سنبھالتے ہی فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ فل کورٹ اجلاس 28 اکتوبر بروز پیر کو بلایا گیا ہے۔ چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی نے پہلا انتظامی حکم جاری کر دیا۔ رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ کے حوالے سے پالیسی دے دی گئی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹیگری بنائی جائے۔ سپریم کورٹ نے ججز روسٹر جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں 7 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ قیادت کا ملک کی ترقی کے لیے کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان میں ایس سی او کانفرنس کے انعقاد کو بھی خوش آئند قرار دیا گیا۔
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग फराहम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। जराये के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी और ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 4 पुलिस अहलकारों समेत 8 अफराद शहीद। खुद हमले की जद में आकर मुतादिद अफराद भी जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लकी मरवत में शहीद कैडेट आरिफुल्ला अबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। नमाज जनाजा और तदफीन में मायदीन इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शहीद कैडेट आरिफुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद पर फितनल खवारिज के हमले को जुर्रात और दलेरी से नाकाम बनाया। पाक फौज से वतन गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। हमले के केस में 82 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास से पुराने की। पीटीआई वकील अंसर क़यानी ने सवाल उठाया, पुलिस को कैदी वैन मोटरवे छोड़कर जीटी रोड पर लाने का किसने कहा? मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर से पुलिस की हिरासत में हैं। अदालत मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर चुकी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि साजिश को बेनकाब करने, असलहे की रिकवरी, वीडियोज़ का तज्ज़िया कराने के लिए मुल्ज़िमान के रिमांड की ज़रूरत है। अदालत ने मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बानी पीटीआई को जेल सहूलियात की अदम फरहमी पर दरख्वास्त दायर। फैसल चौधरी एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई को वर्जिश की सहूलत मैसर नहीं। जेल में बुनियादी सहूलियात से महरूम करना जेल मैनुअल के खिलाफ है। बानी पीटीआई को एक बहुत छोटे सेल में मुस्तकिल बंद रखा जा रहा है। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर आयद पाबंदी खत्म। आम कैदियों समेत तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बाइस मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। दहशतगर्द हमले के खतरे के पेश नज़र मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। ज़ैन कुरैशी पीटीआई के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। वीडियो बयान में कहा कि शो कॉज का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया है। आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। बानी पीटीआई अपने वालिद और पार्टी का वफादार था, हूँ और रहूँगा। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मौजूदा असम्बली नाजायज़ करार। खुशाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन में बैठे हैं और अपोजिशन में ही बैठेंगे। पीटीआई क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में असल मवाद किसी और तरमीम में शामिल नहीं करने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को चोर दरवाजे से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। हुकूमत खत्म करने के चोर दरवाजे अब बंद हो चुके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, नून लीग की हुकूमत खत्म करने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हुकूमत खत्म करने में एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। बानी पीटीआई को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई से करतार पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के बहाने पर पहुंचा दिया। मौजूदा दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। दूसरे सूबों की तरह सिंध में भी आईनी बेंचेस बनाने के लिए जल्द करारदाद लाई जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम से सबसे ज्यादा फायदा अवाम को होगा। अब अवाम के कई साल से ज़ेर समात केसेस की सुनवाई जल्द होगी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं खुद सबके सामने मिसाल हूँ। 6 साल से केस चल रहा है, 4 साल तक जेल में भी रहा हूँ।
सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सुनने के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार पीटीआई के वकील अशरफ समू ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की कराची में एहतजाजी रैली। सिटी कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली की क़यादत सदर कराची बार आमिर वड़ाइच ने की। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सुनने के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार पीटीआई के वकील अशरफ समू ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी तरमीम लाई गई जिसने बराह रास्त अदलिया पर हमला कर दिया। दरख्वास्त दायर करने का मकसद हर पाकिस्तानी के बुनियादी उसूलों को बचाना है। सिंध हाई कोर्ट का एमडी कैट के टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। एमडी कैट के टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के केस में अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। आज ही एमडी कैट के नताइज का ऐलान करें। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का पीएमडीसी के वकील से मुकालमा। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने इस्तफसार किया कि 8,000 रुपए में फ़ी उम्मीदवार लिए गए। ये गरीब के लिए ज़्यादा है। बज़ाहिर इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत पर ADB की शराकत को सराहा। इस्लामाबाद में नए दफ्तर के आगाज़ का खैर मकदम। कुदरती आफात के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी की हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी मुआविन वज़ीर बराए तवानाई वसाइल से भी मुलाकात की। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की आज 76वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पेकलेव पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजात रकम की। मादर वतन के दिफा के लिए बेलौस लगन की मिसाल कायम की। शहीद के मज़ार पर दुआए तकरीब। ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत में नैब तरमीम के बाद रेफरेंस का दायरा इख्तियार और शरीक मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जारी रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी।